Well, in today's class, we are going to proceed with our new chapter. The name of the chapter is conic section. First of all, we need to understand कि क्यों इस चैप्टर को कॉनिक सेक्शन कहा जाता है। देखो नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कॉनिक का मतलब होता है कॉन और सेक्शंस का मतलब कौन को आपने डाइसेक्ट किया है। मीन्स अगर आप इसको समझो कि कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है, देखो आपको ये कौन की फिगर दिखाई दे रही है। इसको अगर हम इस पोर्शन से अगर हम इसको कट करते हैं, वी विल गेट अ फिगर ऑफ सर्कल। We will get a figure of circle. Similarly, if we dissect it in this way, then we will get this figure. This figure is called as parabola. तो बेसिकली कॉनिक सेक्शन का मतलब है कि कौन से हम डिफरेंट फिगर्स निकाल रहे हैं, कौन से हमें सर्कल मिल रहा है, कौन से हमें पैराबोला मिल रहा है, कौन से हमें इलिप्स मिलता है और कौन से हमें मिलता है हाइपरबोला। तो यही आपके चैप्टर के 4 कंसेप्ट है जो आपको स्टडी करना है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 11.1। 11.1 जो है आपका, इट इज बेस्ड ऑन सर्कल, इट इज बेस्ड ऑन सर्कल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर्कल का कंसेप्ट क्या है। यू कैन सी दैट दिस इज अ सर्कल whose center, let its center be C with coordinates a comma b, and let P be any point with coordinates x comma y on this circle. Now we all know that distance of this point from this center is equal to radius. It means CP is equal to R. It means CP is equal to R. Now if we apply distance formula here, अगर हम यहाँ distance formula apply करते हैं, what we will get under root x minus a whole square, means ये आपका x1 y1 हो गया and this is x2 y2, this is x2 y2. So by distance formula, Cp will be equal to x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 minus x1 means x minus a whole square plus y2 minus y1 means y minus b whole square, and it will be equal to R. So by squaring both sides, what we will get? X minus a whole square plus y minus b whole square equal to R square, and this is equation of circle. This is equation of circle. This is equation of circle with center a comma b and radius R. So this is the concept of this exercise. That equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to R square, where a and b are center of a circle. Where a and b are center of a circle. So let's proceed with our first question. Our first question is, in each of the following exercise 1 to 5, find the equation of the circle with center 0, 2 and radius R. Now here center is 0, 2 and radius is equal to 2. And radius is equal to 2. And we have to find equation of circle. We have to find equation of circle. So if I compare center of coordinates with a comma b, can I say that a is equal to 0 and b is equal to 2 and r is equal to 2? So equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to R square. X minus a, in place of a we will put 0, that is x minus 0 whole square
plus y minus b. In place of y, we will put 2. That is y minus 2 whole square equal to 2 square. So x minus 0, that is x. So x square plus y minus 2 whole square, that is a square, y square plus b square, 4 minus 2ab, that is 4y, equal to 2 square, that is 4. Now 4 and 4 will be cancelled out. We are left with x square plus y square minus 4y equal to 0. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. वेल सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये आप खुद कर सकते हो. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ और 5 करवा देता हूँ. राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटर है आपका 1,1 और रेडियस है आपका √2. सेंटर क्या है आपका 1,1. इट मींस वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज 1 एंड r इज इक्वल टू √2. हालांकि ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो क्या करना है आपको, a is equal to 1, b is equal to 1 and r is equal to √2. The equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. X minus a, in place of a we will put 1, x minus 1 whole square plus y minus b whole square. In place of b we will put 1, y minus 1 whole square equal to r square. In place of r we will put √2 square. So what we will have, a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square minus 2ab. √2 square क्या होता है आपका 2. So now what we will have, x square plus y square minus 2x minus 2y, 1 plus 1, 1 plus 1 आपका 2 हो गया, ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल हो जाए. That makes it equal to 0. This is the required answer. This is the required answer. Now let's proceed with the next part. Next part is question number 5. सेंटर है आपका -a, -b और रेडियस है आपका √a² minus b square. रेडियस क्या है आपका √a² minus b square. So first of all, center is -a, -b and radius is √a² minus b square. Now equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. In place of a, we will replace this a with minus a. We will replace this b with minus b. So what we will have, x minus, in place of a we will put minus a, x minus a whole square plus y minus b. In place of b we will put minus b whole square equal to √a² minus b square, r square, √a² minus b square. So minus minus, that is plus a, it makes x plus a whole square plus minus minus plus b, y plus b whole square equal to, देखो रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे इट विल बी a² minus b square. So a plus b whole square is a² plus b square plus 2ab. Y plus b whole square is y² plus b square plus 2by and it is equal to a² minus b square. अब देखो a² जो है वो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है और सेम साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये प्लस अब शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा. So what we will have, x² plus y² x² plus y² plus 2ax plus 2by plus b square equal to 0 plus b square equal to 0. ये एरर है, ये माइनस बी स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा प्लस 2b² इक्वल टू 0. तो प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है. When shifted to the left hand side, it will be b square plus b square. That is 2b² equal to 0. That is 2b² equal to 0. Now the next question is, in
In each of the following exercise 6 to 9, find the center and radius of the circle. देखो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको x + 5 होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर मैं इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा x - -5 होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो गया y -3 होल स्क्वायर, और 36 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 6 स्क्वायर। बेसिकली जब आप कंपेयर करोगे इट विल बी x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। Now you can see that माइनस के साथ जो ये वैल्यू है आपकी दैट इज a, माइनस के साथ ये जो वैल्यू है आपकी दैट इज b। So a is equal to -5, b is equal to 3 and r is equal to 6. So this is the answer of this question. We have to find center and radius. अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये डायरेक्टली आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म में गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में गिवन नहीं है। तो यहाँ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट लगाना होगा। देखो इक्वेशन क्या है आपकी, x² + y² -4x -8y -45 = 0. This is the question. What we will do now, this is the equation. Your equation is x² + y² -4x -8y -45 = 0. अब हमें क्या करना है, somehow we have to convert this equation into this standard form, x - a whole square plus y - b whole square equal to r square. How are we going to do that? First of all देखो x² -4x, लाइट टर्म्स को आप एक साथ कलेक्ट कर लो, प्लस y² -8y इक्वल टू 45। अब हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंसेप्ट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंसेप्ट में क्या होता है, आप x का कोफिशिएंट देखो दैट इज 4, तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आप हाफ कर दो। तो अगर मैं 4 का हाफ करता हूँ इट विल 2। स्टेप 1 क्या होता है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। स्टेप 1 होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कि जो x² है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी है, तो स्टेप 1 तो आपका कंप्लीटेड है। स्टेप 2 क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसका हम हाफ कर देते हैं। तो अगर मैं 4 का हाफ करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2। स्टेप 3, लेट द कोफिशिएंट ऑफ x का जब मैंने हाफ किया, लेट दिस वैल्यू बी 8। तो ये जो वैल्यू आएगी इसका हाफ करके इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर हम इक्वेशन में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स ये जो मेरी वैल्यू a है दैट इज 2, तो आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 2 का स्क्वायर माइनस करना है। इट मीन्स ओवरऑल अगर आप देखो तो आपकी इक्वेशन अभी भी जो पहले थी वही है, 2² से 2² कैंसिल हो जाएगा, इट विल स्टिल बी x² - 4x। बट इससे आप इसको आप इस होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो ये हो गया a², ये हो गया प्लस b², ये हो गया -2a। इट विल बी x - 2 होल स्क्वायर, इट विल बी x - 2 होल स्क्वायर -4 प्लस अगेन y² - 8y। अब यहाँ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना है और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ y² है आपका वो 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप, जो कोफिशिएंट ऑफ y है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है आप इसका हाफ कर दो। तो अगर मैं 8 का हाफ करता हूँ तो ये आ गया 4, ये मेरा हो गया 8। दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू 8। तो जो ये वैल्यू आई है इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर हम माइनस करेंगे। तो y² - 8y ये जो वैल्यू है इसमें हमने 4² को ऐड कर दिया और 4² को माइनस कर दिया, एंड इट इज इक्वल टू 45। तो नाउ दिस इज a² + b² - 2ab, दैट इज a - b होल स्क्वायर, -2² हो गया -4 प्लस a² + b² - 2ab, दैट इज y - 4 होल स्क्वायर -16 इक्वल टू 45।
that is x minus 2 whole square plus y minus 4 whole square equal to 45 plus 16 or plus 4. So what we will have x minus 2 whole square plus y minus 4 whole square equal to 65. अब अगर मैं इसको इक्वेशन से कंपेयर करता हूं दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो देखो ये तो आपका x माइनस ए होल स्क्वायर है, ये आपका y माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए. 65 किसका स्क्वायर होता है? 65 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है. तो इसको स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखोगे? रूट 65 स्क्वायर. So by comparing this value equation with this standard equation, what we will have a is equal to 2. This is minus के बाद जो होता है ये आपकी वैल्यू a. b is equal to 4 and r is equal to 64. So r is equal to root 65 and this is the answer of this question. Okay. देखो 7 की तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 है. ठीक है, और मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9. 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 1 होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है ये भी 1 होना चाहिए. अब यहाँ देखो आप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये 2 है आपका और जो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है ये भी आपका 2 है. व्हाट वी विल डू फर्स्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे माइनस 1/2x हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करोगे प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0. तो ये आपका हो गया फर्स्ट है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 कर दिया. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हमें हाफ करना होता है. तो x के कोफिशिएंट का अगर मैं हाफ करता हूँ तो ये हो जाएगा 2. इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1. तो इट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/2. इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो गया 1/4. ये हो गया आपकी वैल्यू a. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, a स्क्वायर हमें ऐड करना होता है और a स्क्वायर माइनस करना होता है. तो 1/4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1/4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे. y के केस में वी जस्ट हैव y स्क्वायर, वी डू नॉट हैव y. यहाँ तो x स्क्वायर के साथ x था बट यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर. तो इसको आप डायरेक्टली आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो. इट कैन बी रिटन एज y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 0. अब ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. So x minus 1/4 whole square plus y minus 0 whole square minus 1/16. When shifted to the right hand side, it will be 1/16 and which can be written as 1/4 whole square. So by comparing this equation with the standard equation, that is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square, what we will have? Now a is equal to 1/4, b is equal to 0 and r is equal to 1/4. So centers are 1/4, 0 and radius is equal to 1/4 and this is the answer of this equation. Now next question जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, that is question number 15. Question is, does the point minus 2.5, 3.5 lie inside, outside or on this circle? अब अगर इस सर्कल में देखो तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कैसे आप लिखोगे, x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. इट मीन जो इसका सेंटर है वो तो है 0, 0 और जो रेडियस है दैट इज 5.
तो सेंटर और रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आप यहां से फाइंड कर सकते हो। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा या इसके विद इन द सर्कल लाई करेगा या आउटसाइड लाई करेगा या ऑन द सर्कल लाई करेगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है वो विद इन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल होगा या आउटसाइड द सर्कल होगा। तो इसको कैसे हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी गिवन इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दैट इज एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। And by comparing this equation with the standard form x minus a whole square y minus b whole square equal to r square, a is equal to 0, b is equal to 0 and r is equal to 5. So center is 0, 0 and radius is equal to 5. Center हो गया 0, 0 and radius is equal to 5, right? तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, दिस इज द सर्कल और ये इसका सेंटर हो गया 0, 0 एंड लेट द पॉइंट बी ए। ये हो गया सेंटर सी और पॉइंट हो गया हमारा ए दैट इज -2.5, 3.5। जिस पॉइंट को हमें चेक करना है उस पॉइंट को हमने ले लिया ए। तो पहले हमें क्या करना है, सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालना। सेंटर से इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो जब हम वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इट विल बी -2.5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2.5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.5 स्क्वायर। अब देखो जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो सेंटर और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल, उसके बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा रेडियस है मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो 5 है। अब अगर सी और ए का डिस्टेंस 5 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट ए है वो सर्कल पर लाई कर रहा है। अगर सी ए का ये जो डिस्टेंस है 5 से कम आता है तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ए वो इंटीरियर में लाई कर रहा है, विद इन द सर्कल लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल। और अगर ये जो डिस्टेंस सी ए है ये 5 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। तो 2.5 का स्क्वायर हो गया 6.25 और 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25। दोनों को आपने ऐड किया, ये हो गया 18.5 और 18.5 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपका 4 पॉइंट समथिंग है। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करते हो ये 4 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका वो 5 से कम आ रहा है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका वो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, वो लाई करेगा इनसाइड द सर्कल। ओके, in the next class I will discuss the remaining question of this exercise, and these two are very very important questions which I will discuss in the next class. So that is for today's class. Thank you.